Good evening, everyone. Thank you for connecting to Nivesh webinar. Topic our today's session is Explore Investment Opportunities with MLD. For this, we have invited Mr. Bhavik Thakkar, CEO of Abans Investment Managers. Now, I would like to request Sir to take this session forward. Over to you, Sir. Thank you, Kirti. Hi, good evening, everyone. I will just share my screen. I have shared my presentation. And can you just confirm when I am changing the slide? Is it moving? Can you, Kirti, can you please confirm if the slide is moving or not? Is the presentation visible? Yeah. Yes. Okay. Okay. Great. Great. So, thank you, Kirti, for this, and good evening, everyone. In the next about 30-40 minutes, I will take you through MLD as a product category and how this can be beneficial from investors' point of view. Before I do that, let me just take a few moments to tell you about ABANS Group and who we are and what we do and so on and so forth. So our group is promoted by Mr. Abhishek Bansal, and if you see our brand name ABANS, so A comes from Abhishek and BANS comes from Bansal, and that's how the branding of the group is. Abhishek started this group as a proprietary trading desk in 2005, and over a period of time, we have transformed from just being a commodities trading desk to sort of a diversified financial services company. And across the time frame, we have achieved various milestones. And since 2019, under ABANS Investment Managers, we have been managing public money across various product categories. Our parent company, ABANS Financial Services Limited, is already listed on BSE and NSE both. And the all the capital market companies are the subsidiaries. So ABANS Finance is the NBFC. We have a London-based broking company which is regulated by the Finance Conduct Authority. We have presence in Mauritius and so on and so forth. Just a quick word on the financials of the listed company, that is ABANS Financial Services Limited. As of March 2025, we did a profit of about 109 crore, profit after tax for the full year, and we had a net worth of about 1165 crore. In fact, yesterday only we released our first quarter FY26 performance, and we did profit of I think close to about 32 crore was the profit after tax for the FY for the Q1 FY26. The result was announced yesterday only. As in, when I say ABANS investment managers, we offer multiple investment products. So, of course, today we will focus more on market link debenture as a product category. But apart from that, we also offer portfolio management service. We also offer dollar denominated fund. In that, our flagship product is the global arbitrage fund. That's where we have the largest amount of AUM. But today we will talk about market link debenture as a product category, right? So see, we all will be mostly familiar with debenture as an instrument, right? We know, say, Shriram Finance, Manappuram Muthoot, there are many debentures that are there, right? So what is the difference between a normal debenture and a market link debenture, right? So the main difference here is that in a normal debenture, you get fixed coupon, right? I mean, whatever coupon you get, say 8%, 9%, 7% coupon you get, that is fixed. Okay. Whereas in case of, say, in a debenture, where I say that the return will not be fixed, okay, it will be linked with, say, some market instrument like Nifty 50 index or a stock or a commodity. Then I'm talking about returns linked with the market, returns linked with some market instrument. And that is why this product category is known as market linked debenture, right? Uh, our regulator also, if you see, in 2011, SEBI came out with a circular on market link debenture. So regulator also has given this nomenclature as market link debenture, because in India there is no OTC market, there is no over the counter market. In India, these products are offered in the form of a debenture, and that is why also it is known as market link debenture. So the first differentiation from a normal debenture is that in a normal debenture you get a fixed coupon, fixed return, like Shriram Finance, Manappuram Muthoot, etc. Here you get returns which are varied. It depends on the underlying stock or a commodity that it is linked with.
This is the first differentiation. The second differentiation is that in a normal debenture, your coupon frequency is fixed, like you get an annual or a half yearly, yearly, or a monthly coupon, right? Whereas in case of market link debenture, you get everything at the end of the tenure, right? Whenever is the maturity of the product is when you get the full value. Okay, so these are the two major differences between the normal debenture and a market link debenture, right? I mean, if you think about it, uh, say for example, say we call mutual funds as mutual funds in India. Why? Because the regulator has given it as a name as Mutual Funds Regulation 1996. The same product category, if you go to Europe, what we call it as mutual funds in India, if you go to European countries, they call it as UCITS, UCITS. And if you go to some of the other countries, it is known as unit trust, right? So depending upon how the regulator in a particular country has given the name, uh, so in our country, this product category, what we call it as market linked debenture, if you go to some of the developed country like Dubai, Hong Kong, Singapore, US, etc., this product category is known as structured notes or structured products. But in India, because the regulator has called it this product as market link debenture, and also the offering procedure is in the form of a debenture. That is why the product is known as market link debenture, right? Now, how a typical MLD is made up, okay? Any market link debenture is essentially a combination of fixed return and a derivatives link return, right? I mean, both put together makes the return possible. So when I take you through some of the products, you will understand that, you know, how this product really works and so on and so forth. So let me just tell you about some products. So this is the summary of all the products that we offer, right? And when you meet any client, you essentially do the risk profiling of the investor, right? I mean, you will profile based on his risk appetite, you will profile them that whether they are a conservative, moderate, aggressive, very aggressive kind of a risk profile. And then you will try to do the matching of the products available at your disposal with the risk profile of the investor, right? So similarly, the various MLD products that we offer, we also profile them in terms of what kind of risk profile investor will it suit. There is also, you can see here one feature called principal protected, non-principal protected. I will also explain you when I take you through the product, what does this terminology mean and so on and so forth. So let's get started and look at, I mean, before that, I just want to highlight one point that so far, like we've been doing this product category for over 6 years now, you know, somewhere in 2019 we started. So in the last 6 years, if I have to just tell you the statistics, the average returns generated for a conservative category, which is like a hybrid category. When I take you through a product called Dual Advantage, you will understand what I mean. The average return generated for all the products that matured in this particular category, the Dual Advantage category, is about 11.96%. For the moderate category of products that we offered, and we have defined here what do we mean by moderate, the average return has been 14.12%. And for aggressive products, 18.33% has been our average returns, CAGR returns that we have been able to deliver since inception when we started this activity, right? I mean, very important statistics for you to know, because investors will be interested in terms of what has been Avans's performance as it has launched various products over a period of time. So now let's get started with the principal protected MLDs. Uh, let's get started with the principal protected MLDs. I'm going to talk about Dual Advantage as a product. Okay, so this product essentially is for 18 months time frame. We have given this name as uh, we have given the name as Dual Advantage. This of course is linked with Nifty 50 index, and some of the within the name of the instrument, you will see some of the some of the nomenclature, like it is principal protected, secured, and so on and so forth. So all the debentures that we offer, all the MLDs that we offer, whether they are principal protected or not principal protected, they are all secured. Sorry, I had to signal somebody to stop. So sorry. So these are all secured debenture. When I say secured, means they are secured against the book debts and the receivables, right? I mean, as you would know that in the capital structure, in case if a company goes for bankruptcy, for example, the secured creditors gets paid first,
then the unsecured creditor gets paid, and then if there is anything left, it goes to the capital owners, right? That's the order of priority. So all the MLDs that I'm going to talk about today, they are all secured instrument. Another thing you will notice in all the MLD, whether they are principal protected or non-principal protected. Now, principal protection should not be misunderstood with the credit risk of the company. What it means here, like if it is a Nifty linked product and principal protected, what it means is, let's say you start at a Nifty level of say 25,000 and say product is 18 months. At the end of 18 months, if the Nifty is lower than your entry point, okay, let's say Nifty at the end of 18 months is say 23,000. That means it has lost 2,000 points. That means if the product was principal protected, that would mean that you do not lose anything from your principal. But if the product was non-principal protected, means you would also lose those 2,000 points in whatever percentage terms, whatever it happens, about say 7-8%. So you also lose as much as what the Nifty loses if the product was non-principal protected, right? So for you to understand what does principal protection mean from an MLD perspective, this is the meaning. Now let's look at this product in detail. So this particular product, Dual Advantage Series 145, we launched it on 6th of August. So just about 2 days back, we launched this product. That day's Nifty value was 24,574. So we know the entry point. We know at what level of Nifty we have entered. The final fixing level, because it is an 18-month product, the 18-month will get completed by 25th January 2027. On this day, whatever is the settlement price of Nifty or closing price, whatever settlement price we call it as, that will be treated as the final fixing level, right? And then we will know the performance, that how much against the final level, what against the initial level, how much has the Nifty really performed, right? So from a returns point of view, what this product tells you is that, let's look at through a scenario. So let's say our starting point is 24,574. So this is where we started, right? Now it is possible that say over a period of time, Nifty will give you positive returns or negative returns. How much positive, how much negative, we don't know, right? I mean, it has happened some many number of times that the market goes in a price wise correction or a time wise correction. If you see last 1 year, in last September, Nifty was at 26,300 and today we are at 24,000 something level, right? So what basically this tells you is that from the entry point of say 24,574, this is the entry point. At the end of 18 months, if Nifty was to give any negative return or anything less than 10%, so if it gives 10% absolute or lower, and that lower includes even negative also, then you will still get 10% minimum coupon, right? Now remember, this is an 18-month product. 10% absolute for 18 months, it is like 6.63% CAGR. This is your annualized return. This is like your opportunity cost return, right? This is like your minimum return in the product. But at the same time, if Nifty return at the end of 18 months was to be between 10% to 25%, you will get actual Nifty return, whichever is higher. Now think about this. Today, if I come to you and I tell you that I want to be your client, okay, I have 10, 15, 20 lakhs rupees to invest, right? You will do my risk profiling, everything you will do. But at the end of the term, you will have to take an asset location call for me, right? You will decide that, okay, based on my risk appetite, should I go for equity, fixed income, or a hybrid product, right? And you might have experienced in your career that suppose you tell me that market has been very volatile, let's go for fixed deposit, or let's go for some debt instrument, or a some other kind of instrument. Let's not look at equity. And it is possible that the equity will turn from here on, right? And it might give you super normal return. Suppose something turns, we are able to negotiate, let's say, a trade deal and blah blah blah. The Indian economy, because of the interest rates have reduced, might turn up, and you might get super normal return from equity. But because your client money is in fixed income, he's not going to gain you out of it, right? And उसका उल्टा भी हो सकता है कि आप मुझे बोलोगे कि इक्विटी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, एंड मार्केट समझो चला ही नहीं उसके बाद में, सपोज मार्केट गोज इन अ टाइम वाइज करेक्शन और अ प्राइस वाइज करेक्शन, तो मैं आपको आके बोलूंगा कि यार क्या गलत टाइम पे गलत एसेट लोकेशन करवा दिया, राइट?
if you would have invested my money into fixed income, I would have got at least some fixed return, right? मैं अगर एफडी में डाल देता, डेट म्यूचुअल फंड में डालता, तो मेरे को 6-7%, 8% तो रिटर्न मिल जाता। यहाँ पे आपने मुझे इक्विटी में पैसा डलवाया, आई एम नॉट मेकिंग मीनिंगफुल रिटर्न। आई एम श्योर आप सबके साथ में ऐसा होता होगा। तो आप ये जो प्रोडक्ट है ड्यूअल एडवांटेज को आप उस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, दैट व्हेन यू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यू विल नॉट गो रॉन्ग इन योर एडवाइजरी, राइट? बिकॉज आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे तो दो में से एक चीज होगी कि या निफ्टी का रिटर्न जो है वो 10% से ऊपर आएगा या 10% से नीचे जाएगा, राइट? अगर नीचे रिटर्न रहा तो आपके क्लाइंट को, सपोज निफ्टी ने नेगेटिव 10-15% रिटर्न दिया अगले 18 महीने में, then your client will still get 6.63, which is like an opportunity cost, right? आप अगर यहाँ पे इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे हो तो आप फिक्स्ड इनकम में, डेट म्यूचुअल फंड में या एफडी में फिक्स्ड इनकम में लगाओगे, राइट? वहां पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा? से समवेयर अराउंड 7 to 8%, आई मीन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रिस्क प्रोफाइल यू चूज, you get 7 to 8, 8.5% kind of. I'm not looking at some junk bonds and so on and so forth. I'm just looking at some debt mutual fund and corporate FDs, etc. तो आपको उस रेंज में रिटर्न मिलेगा। तो व्हाट दिस प्रोडक्ट टेल्स यू इज दैट कि आप चाहे 8% की कॉर्पोरेट एफडी करो, 8-8.5% की, उसकी कंपैरिजन में आपको मिनिमम 6.63% मिल रहा है यहाँ पे। बट सो यू आर गेटिंग 1-1.5% लोअर अगेंस्ट दैट कॉर्पोरेट एफडी। बट अगर निफ्टी सही में चल गया तो निफ्टी सपोज 25% ऊपर जाता है, दैट इज द कैपिंग लेवल, you will also make 25% absolute return, which is a CAGR of 16.22%. तो इफ यू थिंक फ्रॉम अ रिस्क वर्सेस रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कॉर्पोरेट एफडी की कंपैरिजन में 1-1.5% कम कमा रहे हो यहाँ पे ऑन अ मिनिमम साइड, बट अगर मार्केट सही में चल गया, इक्विटी मार्केट चल गया, तो यू विल मेक डबल दी एफडी रिटर्न। एफडी आपको 8% ही पर एनम देगा या डेट म्यूचुअल फंड, बट यू हैव अ पोटेंशियल टू मेक अबाउट 16% CAGR ऑल्सो, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको या आपके क्लाइंट को कोई एसेट लोकेशन कॉल लेने की जरूरत नहीं है, राइट? इक्विटी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, दैट मींस इफ इक्विटी हैज जनरेटेड मोर देन 10%, यू विल गेट इक्विटी रिटर्न। और इक्विटी मार्केट ने 10% से कम रिटर्न दिया तो आपको मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा, विच एवर इज हायर, यू डोंट नीड टू डिसाइड एन एसेट लोकेशन। सो नाउ आई एम श्योर आप लोग सोचते होंगे दैट दिस इज अ वेरी गुड इक्वेशन कि मार्केट नहीं चला तो एफडी जितना रिटर्न, मार्केट चल गया तो इक्विटी का रिटर्न। So how is ABANS making this product possible, right? Now I'm going to tell you what happens behind the scene. आप जब हमें पर डिबेंचर 1 लाख रुपया देते हो, राइट? तो एबैंस उस पैसों का क्या करता है वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, कैसे हम ये डेट या इक्विटी विच एवर इज हायर ये मुमकिन करते हैं। सो आई एम गोइंग टू नाउ एक्सप्लेन यू ऑन दैट, राइट? सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं जो अभी आपको रेशियो समझा रहा हूँ, जो एलोकेशन समझा रहा हूँ, फंड एलोकेशन, वो ये प्रोडक्ट के लिए है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए कुछ दूसरा हो सकता है। सो इन दिस प्रोडक्ट, दिस ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट, वी आर गिविंग कमिटमेंट, एवेंस इज गिविंग यू 2 कमिटमेंट्स। पहला कमिटमेंट है कि कम व्हाट में, अगर मार्केट, इक्विटी मार्केट निफ्टी नीचे भी जाता है, आई विल स्टिल गिव यू मिनिमम 10% एब्सोल्यूट कूपन, राइट? दिस इज द कमिटमेंट नंबर 1. Commitment number two is that if Nifty generates between 10% to 25%, we will give you actual Nifty return, whichever is higher, correct? So how we will fulfill both the commitments is that out of 100 rupees that you give me, मतलब आप 1 लाख रुपया पर डिबेंचर दोगे, पर मैं आपको एज अ परसेंटेज में 100 से समझाता हूँ। तो आउट ऑफ 100 रुपी दैट यू गिव एबैंस को, we will use 92 rupees out of 100 for our core activity. When I say core activity, मतलब मैं आपको ये ऐसे, आप ऐसे समझिए कि मैंने आपके इन्वेस्टर से वो 92 रुपीज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे समझो मैंने बोरो किया है, और वो फंड्स मैं बोरो करके जो हमारी कोर एक्टिविटी है, जैसे कोर एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज एमएलडी इश्यू करती है, तो जैसे ये कंपनी है एबैंस ज्वेल्स लिमिटेड, जिसका खुद का कोर एक्टिविटी है, उसका खुद का जो काम है वो है कमोडिटीज में, मतलब बेस मेटल, प्रेशियस मेटल में आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन्स करना। और दूसरा, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्टिफाइड कंपनी फॉर म्यूचुअल फंड्स। जो गोल्ड ईटीएफ वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो आपने कोई म्यूचुअल फंड के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करवाया, तो वो गोल्ड ईटीएफ के लिए भी म्यूचुअल फंड को गोल्ड बाय करना पड़ेगा, राइट? तो वो जो
पूरा प्रोसेस है उसमें एबैंस ज्वेल्स इज वन ऑफ द मार्केट मेकर, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज जो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के लिए जो कमोडिटी है गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें एबैंस ज्वेल्स इज वन ऑफ द अप्रूव्ड वेंडर बेसिकली इनटू दैट। तो ये इसकी कोर एक्टिविटी हो गई, करेक्ट। तो अभी आप ऐसे समझिए, वापस आते हैं एग्जांपल पे कि 100 रुपए में से 92 रुपीज हमने अज्यूम किया कि हमारा जो कोर एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है कंपनी की, उसके लिए मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे ले रहा हूँ, समझो। और लेट्स से वी आर एबल टू जनरेट 15% रिटर्न ऑन दैट। तो इट मेक्स अ कमर्शियल सेंस कि मैं 12% पे, समझो मैंने बैंक से लोन लिया, वैसे आपके क्लाइंट से 92 रुपीज का वैसे मैंने लोन लिया है, ठीक है। अभी वो जो 92 रुपीज है, वहां पे मेरा कमिटमेंट है 12%, समझो मैं 15-18% रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ। तो दैट इज माई एडिशनल रिटर्न राइट ऑन दैट। तो से इफ यू डू द कैलकुलेशन कि 92 रुपीज को अगर आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करोगे, जो हमने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अज्यूम किया है, तो 92 विल बिकम 110 एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, क्योंकि ये 18 मंथ्स का प्रोडक्ट है। तो मेरा पहला कमिटमेंट क्या है, दैट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स मैं आपको 100 रुपया प्रिंसिपल प्लस मिनिमम 10 रुपया कूपन दूंगा ही दूंगा। दिस इज माई मिनिमम कमिटमेंट। सो 92 रुपीज विल, इफ यू एड द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, तो वो ब्याज जोड़ने से आपका 92 रुपीज विल ग्रो टू 110। तो उससे मैं मेरा पहला प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। बाकी मेरे पास में जो 8 रुपए बच गए हैं, ठीक है, उसमें से मेरा कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर का एक्सपेंसेस भी है। तो समझो मैंने 2 रुपया निकाल दिया, मेरे लीगल कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह मैंने निकाल दिया, मेरे पास समझो 6 रुपया बच गया। तो बाकी का जो 6 रुपया है, उससे हम लोग डेरिवेटिव्स के थ्रू जो सेकेंड प्रॉमिस है, बिकॉज मेरा सेकेंड प्रॉमिस ये प्रोडक्ट में क्या है कि अगर निफ्टी का रिटर्न 10% से 25% के बीच में रहा, राइट, पहला 10% तो मैंने कवर कर लिया, 92 विल ग्रो टू 110। उसके ऊपर का जो रिटर्न है, उसको मुमकिन करने के लिए हम ये बाकी का 6 रुपया जो है वो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में डिप्लॉय करेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं बिटवीन 27,000 एंड 30,700, ये जो मेरा रेंज है, वहां पे निफ्टी का रिटर्न 10% से 25% के बीच में जो बनेगा, उसको मैं हेजिंग करूंगा 6 रुपया यूज करके, करेक्ट ना। वो हमारी जो हेजिंग होगी वो बेसिकली ऐसे होगी, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि देर इज अ मैक्सिमम कैपिंग, राइट। निफ्टी 18 महीने में मोर देन 25% भी बढ़ सकता है टेक्निकली, इट कैन ग्रो, इट मे और मे नॉट, हमें नहीं पता है, पर theoretically it can grow more than 25% also, right? So what we are saying here is कि हम मैक्सिमम 25% पे रुक जाएंगे। तो हमारा जो 6 रुपीज बच गया, दैट 6 रुपी वी विल डिप्लॉय टू हेज बिटवीन 110% टू 125%, करेक्ट। सो दैट अगर मार्केट निफ्टी सही में 10% से ऊपर रिटर्न देता है, तो जो इंक्रीमेंटल रिटर्न है, सपोज निफ्टी का रिटर्न 20% आया एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, निफ्टी समझो 29,500 पे क्लोज हुआ, सो विच मींस 20% रिटर्न। तो ऊपर का जो 10% है, पहला 10% आपको 92 विल ग्रो टू 110। सी इन्वेस्टर को तो जो हम पूरा, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, मतलब हमने जो लिख के दिया है वही रिटर्न मिलने वाला है, पर मैं आपको ये कैलकुलेशन इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप भी इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि इन्वेस्टर सोचे कि यार ये तो इनके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि भाई मार्केट नहीं चला तो 10%, मार्क मतलब 6.63%, और मार्केट चल गया तो एक्चुअल निफ्टी रिटर्न, तो एवेंस कैसे मुमकिन करता है। तो दिस इज हाउ वी मेक इट पॉसिबल, राइट। इनफैक्ट इस टॉपिक में जब मैं बात कर रहा था, तो समबडी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि यार आप तो डेरिवेटिव्स वर्ड यूज कर रहे हो कि 6 रुपया आप डेरिवेटिव्स में लगा के आप ऊपर का रिटर्न जनरेट करोगे, राइट। तो डेरिवेटिव्स तो बहुत रिस्की होते हैं, एंड सेबी स्टडी सेज दैट 93% of the people who are into derivatives they are losing money, especially retail investors are losing money। तो ये तो बहुत रिस्की हो गया। तो मैं बोला, मैंने उनको एक सवाल पूछा और मैं आपको भी पूछता हूँ दैट आप लोग सब इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, राइट। इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। सपोज रिलायंस का स्टॉक अभी 2,000 रुपए पे चल रहा है और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2,030 रुपए में चल रहा है। तो आपका इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर क्या करता है कि कैश मार्केट में 2,000 का स्टॉक बाय किया, और फ्यूचर मार्केट में उसने 2030 का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज अगस्त एक्सपायरी, उसने सेल कर दिया। और वो वेट करता है टिल द एंड ऑफ द मंथ,
एंड ऑफ द मंथ चाहे प्राइस रिलायंस का ऊपर जाए या नीचे जाए, उसने जो 30 रुपीज लॉक किया है, दैट बिकम्स हिज कंफर्म्ड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट? तो आप इस ट्रांजेक्शन में देखिए कि आपका इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर भी डेरिवेटिव्स यूज कर रहा है। जब उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो उसने भी डेरिवेटिव्स यूज किया। मान लीजिए कि इसके बाद रिलायंस का भाव बढ़ के 2200 रुपया हो गया, तो कैश मार्केट में आपको 2000 से 2200 मतलब 200 रुपए का फायदा हुआ। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने 2030 में बेचा है, 2030 रुपीज में बेचा है, और वो 2200 में आप कवर अप करोगे तो 170 रुपए का घाटा होगा। पर दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो यू विल स्टिल मेक 30 रुपीज का प्रॉफिट, राइट? और अगर प्राइस नीचे भी चला गया, समझो प्राइस 1900 चला गया, तो आपको कैश मार्केट में 100 रुपए का नुकसान होगा। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तो 130 का प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपने 2030 में बेचा है और 1900 रुपए में कवर करोगे, तो आपको 130 रुपए का फायदा हुआ। तो और सामने 100 रुपए का नुकसान हुआ कैश मार्केट में, तो दोनों को मिला के 30 रुपए का फायदा हुआ। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपके इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने भी डेरिवेटिव्स यूज किया, पर उस डेरिवेटिव्स को उसने स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं किया है। आप समझ रहे हो? डेरिवेटिव्स को उसने यूज किया है फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए। तो जब सेबी का स्टडी बोलता है कि 93% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी इन डेरिवेटिव्स, दे आर स्पेक्यूलेटिंग। डेरिवेटिव्स आर नेवर मेंट फॉर स्पेक्यूलेटिंग, दे आर मेंट फॉर हेजिंग एक्टिविटी, दे आर मेंट फॉर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो जैसे आपका इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स को यूज करता है फंड मैनेजमेंट के लिए, वैसे ही यहाँ पे ये जो 6 रुपया मैंने आपको समझाया कि 6 रुपीज वी विल डिप्लॉय इनटू डेरिवेटिव्स इन सच अ वे, हमारी पोजीशन ऐसे होगी कि मार्केट सही में 110% ऑफ द करंट लेवल से ऊपर गया तो इंक्रीमेंटल रिटर्न हमें वहां से आना चालू होगा। और पोजीशन वैसी होगी कि मार्केट अगर नहीं चला, फॉर एग्जांपल मार्केट 10-15% नेगेटिव है, तो भले मेरा 6 रुपया जीरो हो जाए, पर मेरा जो 92 रुपीज है वो ग्रो होके 110 रुपया बन जाए। तो एबांस के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। दिस इज लाइक अ प्योर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी विच मेक्स दिस रिटर्न पॉसिबल। बट इफ यू थिंक फ्रॉम अ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आज की तारीख में अगर आपका क्लाइंट कोई, समझो आज मैंने कोई निफ्टी ईटीएफ में पैसा डाल दिया और मार्केट 15% नेगेटिव हो गया एट द एंड ऑफ से 18 मंथ्स, तो उसको भी 15% नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, राइट? यहाँ पे कैसा है कि एटलीस्ट आप लॉस नहीं करोगे और मिनिमम 6-6.5% आपका रिटर्न मिलेगा। और मार्केट चल गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको मार्केट रिटर्न मिल जाएगा, करेक्ट? सो दैट इज द पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ड्यूअल एडवांटेज। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट समझाता हूँ, निफ्टी मैक्सिमाइजर। आपके पास ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जिनको लगता है कि हाँ अभी मार्केट थोड़ा बॉटम आउट हो गया है, मुझे ये लेवल से थोड़ा पॉजिटिव दिखता है, एंड आई वांट टू पार्टिसिपेट, आई वांट टू गेट मोर मनी फ्रॉम द मार्केट। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए, स्लाइटली एग्रेसिव मॉडरेट एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला प्रोडक्ट एक अच्छा हो सकता है, निफ्टी मैक्सिमाइजर। ये भी 18 महीने का प्रोडक्ट है। पर पर जो मैंने आपको लास्ट प्रोडक्ट समझाया और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट हमने आज लॉन्च किया है, टुडे इज 8 अगस्त। सो आज का जो क्लोजिंग निफ्टी है वो आपका एंट्री पॉइंट हुआ सीरीज 146, वो वाला 145 था, ये 146 है। एंड इसका निफ्टी क्लोजिंग होगा 25 जनवरी 2027 का, 18 मंथ्स लेटर। एंड 30 जनवरी 2027 मतलब 5 दिन के बाद में इसका मेच्योरिटी पे आउट मिल जाएगा इन्वेस्टर को। सो ये प्रोडक्ट भी निफ्टी 50 के साथ लिंक्ड है। अभी ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि समझ लीजिए कि आज का एक अज्यूम्ड, इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये अज्यूम्ड निफ्टी लेवल है कि 24,500। तो समझ लीजिए कि 24,500 पे हमने एंट्री की, और 18 मंथ्स के बाद में अगर निफ्टी आपका नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल इफ निफ्टी गिव्स एनी नेगेटिव रिटर्न, देन यू डोंट गेट एनी नेगेटिव रिटर्न, यू गेट प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, राइट? 18 मंथ्स के बाद में समझो निफ्टी नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे जीरो रिटर्न मिला मतलब नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला, मतलब योर 1 लाख रुपए जो फेस वैल्यू है ऑफ द डिवेंचर वो आपको वापस मिल जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। बट एज अ बार्गेन, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई मैं मिनिमम रिटर्न नहीं दे रहा हूँ जैसे वो लास्ट प्रोडक्ट में था 6.6%, तो एज अ बार्गेन यहाँ पे कैसा है दैट अप टू 20% ग्रोथ इन द स्टॉक इन द निफ्टी, ओके, इन 18 मंथ्स टाइम फ्रेम टू बी ऑब्जर्व एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। ऐसा नहीं कि बीच में ऊपर गया वापस हमें क्या देखना है, पॉइंट टू पॉइंट देखना है, डेट टू डेट देखना है। आज का क्लोजिंग निफ्टी 8 अगस्त का,
एंड 25 जनवरी 2027 का क्लोजिंग निफ्टी जो प्राइस होगा वो ही हमें देखना है, बीच में कुछ देखना नहीं है, राइट? सो so let's say Nifty gives positive return. So up to 20% growth in Nifty, because हमें निफ्टी कितना ग्रोथ देगा वो हमें नहीं पता है. So this is a scenario, assumed scenario, कि अगर समझो निफ्टी ने 10%, 12%, 15% दिया, कुछ भी दिया, अप टू 20%, यू विल गेट 140% पार्टिसिपेशन. ये आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में 20 या निफ्टी परफॉर्मेंस इंटू 140% पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? व्हेन आई से 140% पार्टिसिपेशन मींस निफ्टी अगर 1% रिटर्न देगा तो उसका 140% मतलब 1.4 टाइम्स रिटर्न ये प्रोडक्ट देगा. निफ्टी अगर 1% देगा तो ये 1.4 देगा. वैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे निफ्टी ने 10% दिया तो ये 14% देगा एब्सोल्यूट रिटर्न. और मैक्सिमम है निफ्टी 20% रिटर्न देगा, उसका 1.4x इज 28%. ये प्रोडक्ट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है. मतलब निफ्टी कैन गिव मोर देन 20 ऑल्सो, वो हमें नहीं पता है. निफ्टी 21, 22, 25, 30, 40, 50 भी दे सकता है थियोरिटिकली. प्रैक्टिकली 18 महीने में कितनी बार निफ्टी ने मोर देन 28% रिटर्न दिया है वो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बट नॉट सो मेनी टाइम्स, करेक्ट? सो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि यहाँ पे आपको, अगर आपका इन्वेस्टर थोड़ा ऐसे सोचता है कि मुझे यहाँ से ना मार्केट ज्यादा नीचे नहीं दिखता है, बिकॉज द मार्केट हैज नॉट डन एनीथिंग इन लास्ट 1 ईयर. जैसे मैंने बोला ना कि 26,300 वाला निफ्टी अभी 24,500 है, 2,000 पॉइंट अभी भी नीचे, और मार्केट एक साल ऊपर आ गया, राइट? कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो करीबन 12% तो बढ़ी है. मतलब लेट्स से दे वुड हैव एक्सपेक्टेड 20% ग्रोथ, पर एटलीस्ट 12% जितना तो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, राइट? सो माय पॉइंट इज, अगर मार्केट यहां से टर्न करता है तो ये प्रोडक्ट में क्या है कि यू आर गेटिंग 1.4x द पार्टिसिपेशन. निफ्टी 20 देगा, आपको यहाँ पे 28% रिटर्न मिलेगा, विच इज अ CAGR ऑफ 18.16%. ऑन द डाउन साइड योर प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड. तो इट इज लाइक कि आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे क्या, कहाँ प्रोटेक्शन है? प्रिंसिपल प्रोटेक्शन स्टॉक बाय करोगे या म्यूचुअल फंड बाय करोगे तो उसमें तो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है ही नहीं. मार्केट नीचे गया तो आपकी एनएवी भी नीचे जाएगी, यू विल ऑल्सो लूज. तो इफ यू थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा फीचर है. एक इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन है, एक ये है कि मार्केट अगर नीचे गया तो आई विल नॉट लूज माय कैपिटल, राइट? दूसरा, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मार्केट लिंक डिबेंचर जो है वो अंडर सेक्शन 50 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. जिस इनकम टैक्स 50 AA में आपका डेट म्यूचुअल फंड शामिल है, उसी इनकम टैक्स की सेक्शन 50 AA में मार्केट लिंक डिबेंचर को भी कवर किया है. ठीक है, वो दोनों एक ही इनकम टैक्स की धारा 50 AA में कवर्ड है. वो क्या बोलता है कि MLD में जो टैक्सेशन इन्वेस्टर को लगेगा, चाहे कितने भी टेन्योर का हो, चाहे आप बीच में बेच के निकलो किसी को या फिर आप मेच्योरिटी पे आउट लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इनकम, आपका जो स्लैब रेट है उस हिसाब से ही टैक्सेशन लगेगा, करेक्ट? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी जो नया इनकम टैक्स रेजिम है उसमें ऐसा बोला है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर दैट एनी इनकम अप टू 12 lakhs ऑफ रुपीज यू डोंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स, राइट? तो अभी हम दो तरीके के इन्वेस्टर की बात करते हैं. एक जिसकी इनकम 12 लाख से कम है, और दूसरे ऐसे जिसकी इनकम से 12 लाख से ऊपर है या 30% टैक्स ब्रैकेट में है, HNIs है, उनकी बात करते हैं. दोनों के परस्पेक्टिव से समझते हैं इस प्रोडक्ट को कि हाउ डज दिस वर्क ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस. आपके पास ऑप्शन है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, ETF में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो. तो वहां पे कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न आएगा वर्सेस यहाँ पे कितना आएगा, वो दोनों समझते हैं. तो पहले हम उसकी बात करते हैं कि जिसका इनकम 12 लाख रुपए से कम है. मतलब आपके ऐसे कई क्लाइंट ऐसे होंगे कि जो खुद तो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, दे माइट बी द ब्रेड विनर इन द फैमिली एंड दे माइट बी इन 30% टैक्स ब्रैकेट, बट दे विल हैव से अ हाउस वाइफ, और मे बी दे विल हैव पेरेंट्स और एन HUF जिनका इनकम 12 लाख रुपए से कम है, राइट? अगर उनके नाम पे MLD इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो उसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 50 AA ऐसा बोलता है कि पहला 12 लाख रुपए तक का जो इनकम होगा जो MLD में से, वो आपकी बेसिक इनकम होगी, करेक्ट? क्योंकि ये आपके स्लैब रेट पे टैक्स लगने वाला है. तो अगर आपका बेसिक इनकम ही 12 लाख रुपए से कम है,
ठीक है, जो हाउस वाइफ है या उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया, ब्रेड विनर कुड बी इन 30%, बट उसने अपने फैमिली के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया जहां पे इनकम टैक्स कम है, उनकी लायबिलिटी कम है, तो 12 लाख रुपए तक का अगर आप एमएलडी में से रिटर्न जनरेट करते हो, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं भरना है, राइट? सो दैट इज फॉर पीपल हु आर इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट, और टिकट साइज भी छोटा है ना, लाख रुपए की टिकट साइज है। मतलब अगर ये 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये तो सब एचएनआईज के लिए ही है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो है ही नहीं। पर 1 लाख की टिकट साइज में छोटे से छोटा एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? सो फॉर देम इट इज अ नो ब्रेनर दैट वॉट एवर रिटर्न दे पे, सपोज वो बंदे ने जिसका जीरो टैक्सेशन में आता है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है या स्टॉक खरीदता है, वहां पे अगर आपका 5 लाख 10 लाख का भी कैपिटल गेन होगा, उसके ऊपर उसको 20% या 12.5% इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, इवन इफ इनकम इज बिलो 12 lakhs। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड में और जो स्टॉक्स में है, वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन में है। तो आपकी इनकम चाहे 12 लाख से कम है, पर आपका रिटर्न जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी स्टॉक से है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको भरना पड़ेगा। पर वही रिटर्न अगर आपका ये एमएलडी के थ्रू है 12 लाख से कम का, तो आपको 1 रुपया टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। दिस इज एडवांटेज नंबर वन। एडवांटेज नंबर टू इज कि यहाँ पे 1.4x पार्टिसिपेशन है, राइट? जब आप कभी कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा या कोई भी पीएमएस वगैरह कहीं पे भी पैसा लगाते हो एक्टिवली मैनेज फंड में, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट आई वांट माय फंड मैनेजर टू आउट परफॉर्म, राइट? आपको अल्फा चाहिए, यू वांट टू जनरेट मोर देन निफ्टी रिटर्न्स, राइट? मोर देन द इंडेक्स रिटर्न। दैट इज व्हाई यू आर गिविंग मनी फॉर एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो। अदरवाइज यू आर गुड एट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ की मुझे तो मार्केट को, इंडेक्स को हक करने वाला ही प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे को इंडेक्स जितना रिटर्न दे, करेक्ट? तो जब ये प्रोडक्ट में मैं आपको बोलता हूं कि 140% इज द पार्टिसिपेशन, मीन्स for every 1% that Nifty is generating, this product will give you 1.4। मतलब ये निफ्टी को 40% से आउट परफॉर्म करेगा, अल्फा जनरेट करेगा। दैट इज गिवन बाय प्रोडक्ट डिजाइन, राइट? आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंड मैनेजर टेबल बना के देता है कि निफ्टी इतना बढ़ेगा तो मैं इतना रिटर्न दूंगा। पर दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट लिंक डिबेंचर एज अ प्रोडक्ट, कि आप बिना इन्वेस्ट किए आपके सामने टेबल है कि मार्केट नीचे गया तो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, मार्केट ऊपर गया तो अप टू 20% ग्रोथ, आपको 1.4x, मतलब 40% से आप मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे अप टू 20% ग्रोथ, राइट? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो इन्वेस्टर 30% टैक्स ब्रैकेट में है, जो एचएनआई है, उसके लिए कैसे सोचना चाहिए। इज इट बेनिफिशियल फॉर हिम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, करेक्ट? सो लेट अस ड्रॉ पैरेलल। समझिए कि एक इन्वेस्टर ने जो 30% ब्रैकेट में है, उसने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल इक्विटी इंडेक्स निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, और 10 लाख रुपया प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। एंड मान लीजिए कि निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया है एट द एंड ऑफ द 18 मंथ्स टाइम फ्रेम। तो जो ईटीएफ में है 20% इन्वेस्ट, 10 lakhs का इन्वेस्टमेंट जहां पे 20% रिटर्न मिला, वहां पे उसको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, राइट? तो 12.5% ऑफ 20 इज 2 रुपी 50 पैसा, मतलब 20 रुपए रिटर्न में अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में 2 रुपया 50 पैसा टैक्स भरा, तो आपको 17 रुपी 50 पैसा पोस्ट टैक्स रिटर्न मिला, वो इन्वेस्टमेंट के पोस्ट टैक्स रिटर्न। अब वही 20% निफ्टी ग्रोथ के सामने दिस प्रोडक्ट इज गिविंग यू 28% एब्सोल्यूट रिटर्न। इसके ऊपर लेट अस अज्यूम दैट ही पेज 30% टैक्स, तो 28 में 30% मतलब 8.5 रुपया, 8 रुपी 50 पैसा है, लेट से इज पेड एज टैक्स। दैट मीन्स यू आर स्टिल गेटिंग 19 रुपी 50 पैसा, 19 रुपया 50 पैसा यू आर स्टिल गेटिंग पोस्ट टैक्स रिटर्न अगेंस्ट 17 रुपी 50 पैसा दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट निफ्टी ईटीएफ और एन एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, करेक्ट? तो 30% टैक्स भरने के बाद में भी दिस इज मेकिंग सेंस फ्रॉम दैट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे 40% आउट परफॉर्मेंस है। तो नेचुरली अगर आप टैक्स भी निकालोगे एडिशनल 12.5% वर्सेस 30%, आप एडिशनल 17.5% टैक्स भी निकालोगे, बट बिकॉज देर इज अ हायर पार्टिसिपेशन यू आर गेटिंग बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न। दैट इज एडवांटेज नंबर टू। एडवांटेज नंबर थ्री इज, अगर मार्केट नीचे चला गया तो म्यूचुअल फंड आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं देगा, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन होगा, राइट? तो क्या ये जो एमएलडी मैंने आपको दो प्रोडक्ट समझाए, क्या इज दिस प्रोडक्ट अ कंपटीशन टू म्यूचुअल फंड?
राइट? ये आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करते हुए ये प्रोडक्ट में करना चाहिए, एक्चुअली दैट इज नॉट द केस, राइट? MLD as a product के भी limitations है. I can't just only tell good things about my product. Let me also tell you something not good, or rather, something better for for mutual funds as well. तो MLD एक लॉक्ड इन प्रोडक्ट है, आप ऐसे समझिए, इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में ये सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाती है। टेक्निकली सिक्योरिटी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप सेल करके या ट्रांसफर करके, मतलब आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर करके किसी को पैसा लेके आप बेच भी सकते हो, बट इट इज सेफ टू अज्यूम दैट देयर इज नो लिक्विडिटी, बिकॉज फॉर अ ट्रांजेक्शन टू हैपन बायर एंड सेलर होना चाहिए, राइट? इसका कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है जहां पे आपको इमीडिएटली बायर मिल जाएगा। तो मार्केट लिंक डिबेंचर इज लाइक अ लॉक्ड इन प्रोडक्ट, 18 महीने का टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप प्लीज इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। सो ये एक उसका लिमिटेशन है, जबकि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड आप कभी भी निकाल सकते हो। तो दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इफ यू थिंक अबाउट इट, कि आपका क्लाइंट के पास में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है, इंडेक्स फंड भी है, तो उसके साथ में अगर आप MLD एज अ प्रोडक्ट दोगे फॉर वॉट एवर मनी दैट ही इज ओके, कि जो मैं लॉक इन रहेगा तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल एक्चुअली बूस्ट योर पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट? हमें हमेशा हम एक इंस्ट्रूमेंट लेवल पे रिटर्न नहीं देखते, हम जब इन्वेस्टर को व्हेन वी डू अ पोर्टफोलियो रिव्यू, वी रिव्यू हाउ द पोर्टफोलियो हैज परफॉर्म, राइट? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, कि आज मैंने 10 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला और 10 लाख रुपया साथ में मैंने ये MLD डाला, फॉर एग्जाम्पल मार्केट समझो 15% नेगेटिव रिटर्न देता है, तो इक्विटी आप म्यूचुअल फंड आपको 15% नेगेटिव देगा, बट ये आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन देगा। तो अगर आप वेटेड एवरेज देखोगे तो 7.5% ही कैपिटल में लॉस हुआ। अगर मान लीजिए कि मार्केट ने सबड्यूड रिटर्न दिया, 10-15%, 20% तक रिटर्न दिया, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको 20 के सामने 20 देगा, ये 20 के सामने 28 देगा, तो आपका रिटर्न जो है वो 14% एवरेज बना, अगर दोनों में 10-10 लाख है तो। और तीसरा सिनेरियो, कि समझिए मार्केट समझो 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, ऐसा हुआ भी है पास्ट में, जब मार्केट में तेजी थी अभी 5 साल पहले, पिछले 1 साल को आगे, 1 साल से आगे 3-4 साल, तो देर वॉज लाइक 30-40% रिटर्न इन 18 मंथ्स टाइम फ्रेम। तो उस केस में इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको 40% देगा, या आपको 28 देगा, दोनों का वेटेड एवरेज आप देखेंगे तो यू विल सेटल एट 34-35%, करेक्ट? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, that this product is a complement to mutual fund, it is not a competition to mutual fund। आपको म्यूचुअल फंड रखना ही, बिकॉज वहां पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, आपको कभी भी निकालना है आप वो निकाल सकते हो, MLD कभी भी निकालना है ऐसे निकाल नहीं सकते। So that is how you should understand from a taxation point of view also। In this product, when your client gives us 100 रुपी, मैं आपको ये समझा दूं कि हम ये 28% रिटर्न कैसे मुमकिन करते हैं। तो इस प्रोडक्ट में कोई मिनिमम रिटर्न नहीं है, जैसे ड्यूअल एडवांटेज में था। देर इज प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, दैट इज प्रॉमिस नंबर 1। प्रॉमिस नंबर 2 इज निफ्टी यहाँ से 20% बढ़ेगा, वी विल गिव यू अप टू 28%, विच इज 1.4x रिटर्न। सो व्हेन योर क्लाइंट इन्वेस्ट 100 रुपी इन दिस प्रोडक्ट, वी विल यूज 85 रुपीज फॉर द कोर एक्टिविटी, जो मैंने आगे आपको समझाया, कि जो इशुइंग कंपनी है, जैसे हमारे केस में अगर एबैंस ज्वेल्स इशू करती है तो उसकी कोर एक्टिविटी मैंने आपको समझाई। पर मान लीजिए कि एबैंस फाइनेंस, जो हमारी NBFC है, जो लोन देती है बेसिकली, अगर वो कंपनी इशू करती है, तो उसका अजम्पशन रहेगा कि मैंने 100 में से 85 रुपीज, जो ये प्रोडक्ट के लिए है, 85 रुपीज मैंने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपसे लोन लिया है, और वो फर्दर लोन करेगी, बेसिकली आपने उसको दिया और वो उसका काम है एज एन NBFC लोन देने का, करेक्ट? तो लेट्स से इट इज जनरेटिंग 13-14-15% रिटर्न, तो उसको 2-3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है, 12% पे उसने आपसे बोरो किया और उसने सामने लोन किया है, करेक्ट? जो कोई भी NBFC करती है। तो 100 रुपए में से 85 रुपीज, लेट अस से इट इज ग्रोइंग एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर आप उसको 18 महीने के लिए जोड़ोगे तो 85 विल ग्रो टू 100 रुपीज। तो वहां पे आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है? माई फर्स्ट प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। द सेकेंड प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए द 15 रुपीज जो बच गए, उसमें से समझो 2 रुपया मेरा अपफ्रंट एक्सपेंसेस भी चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन और बाकी मेरा लीगल एक्सपेंसेस के लिए। So जो 13 रुपीज है, अगेन वी विल यूज फॉर डेरिवेटिव्स टू हेज बिटवीन द करंट निफ्टी लेवल एंड 120% निफ्टी लेवल। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट ऊपर गया, तो इंक्रीमेंटल 28 रुपए तक का रिटर्न मुझे 13 रुपीज 13 13 रुपए जो मेरे पास में है,
उसको मुझे डेरिवेटिव्स में ऐसे डिप्लॉय करना है कि मार्केट अगर नीचे गया तो मुझे नुकसान नहीं चाहिए, मेरा मैक्सिमम नुकसान वो 13 रुपीज का होना चाहिए। पर मार्केट सही में अगर ऊपर गया अप टू 20%, तो हर 1% निफ्टी के लिए मुझे 1.4% मिलना चाहिए। दैट मीन्स जो 13 रुपीज है, दैट विल जनरेट एडिशनल 28% अगर निफ्टी सही में 20% ऊपर जाता है तो, राइट। सो देर इज अ प्योर साइंस एंड मैथ्स विच इज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग दिस रिटर्न। ये मतलब दिस इज नॉट लाइक कि एक अजम्पशन के बेस पे प्रोडक्ट बन रहा है, वैसा कुछ नहीं है, करेक्ट। And again, if you see 28% in 18 months, it is a CAGR of almost 18% per annum, correct? तो अभी मैंने आपको दो प्रोडक्ट समझाए, एक मैंने ड्यूअल एडवांटेज समझाया विच इज लाइक अ वेरी कंजर्वेटिव प्रोडक्ट, हाइब्रिड प्रोडक्ट, एंड दूसरा मैंने आपको समझाया निफ्टी मैक्सिमाइजर, जो कि एक स्लाइटली मॉडरेट एग्रेसिव इन्वेस्टर को एक सूट करेगा, राइट। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द मैक्सिमाइजर, जैसे मैंने निफ्टी मैक्सिमाइजर आपको निफ्टी के साथ लिंक था, वैसा हमने एक सिमिलर प्रोडक्ट किया अभी रिसेंटली, हमने किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर, राइट। तो हमने 1 जुलाई को ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था लास्ट मंथ में। वी स्टार्टेड एट 820, ये जैसे 24 मंथ्स का प्रोडक्ट है कंपेयर टू द डिवाइजर वाज 18 मंथ्स का प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या यहाँ पे क्या प्रोडक्ट था, निफ्टी मैक्सिमाइजर में आपको 140% पार्टिसिपेशन था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन है 155%, एंड जो कैपिंग लेवल है वो वहां पे 20% था, ये यहाँ पे 25% है। मतलब अगले 2 साल में 820 के एंट्री पॉइंट से, वो जो 1 जुलाई को किया था, अगर 2 साल में एसबीआई का स्टॉक यहाँ से 25% बढ़ता है, तब तक आपको 155% पार्टिसिपेशन है। हर 1% जितना एसबीआई देगा आपको सामने ये प्रोडक्ट 1.55% रिटर्न देगा। मतलब आप 55% से आप इसको आउट परफॉर्म करोगे। तो अगर सही में स्टॉक ने 25% रिटर्न दे दिया, मतलब 820 वाला एसबीआई अगर 1025 होता है 2 साल के बाद में, थिंग टू रिमेम्बर इज 2 इयर्स, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में इसको होना पड़ेगा। अब ठीक है, मार्केट माइट बी सबड्यूड राइट नाउ, पर इतना सारा जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, और आज भी एसबीआई का रिजल्ट आया, कुछ 19,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, राइट। सो वी हैव टू लुक एट द नेक्स्ट 2 इयर्स, दैट हाउ विल द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एंड हाउ द क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो अगर स्टॉक सही में 25% तक भागता है एसबीआई का, यू विल मेक 155% पार्टिसिपेशन। मतलब 25% स्टॉक बढ़ेगा, यू विल मेक 38.75, विच इज अ 17.74% CAGR, राइट। एंड जैसे मैंने आपको आगे पोस्ट टैक्स समझाया था कि इवन इफ यू पे 30% टैक्स, यू विल स्टिल मेक बेटर रिटर्न्स फ्रॉम द एमएलडी वर्सेस जस्ट बाइंग द स्टॉक, राइट। या निफ्टी को बाय करते हो या स्टॉक को बाय करते हो, उसकी कंपैरिजन में आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये थे सब प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट। मैं अभी आपको क्विकली थोड़ा नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड के बारे में समझा देता हूँ। आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई कि एमएलडी कैसे काम करता है, फिर प्रोडक्ट समझना बहुत आसान है। तो जैसे एक ये है निफ्टी मैक्सिमाइजर, हमने अभी लॉन्च किया था 21 जुलाई को। निफ्टी उस दिन था 25,090। सो लाइक जो मैंने प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट में समझाया था कि डाउन साइड में आपके पास वहां पे प्रोटेक्शन था, यहाँ पे जीरो रिटर्न था, देयर वाज नो नेगेटिव रिटर्न। पर ये नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है, मतलब क्या कि डाउन साइड में 1:1x रिटर्न है। अब जैसे अपसाइड में आपका 170%, 75% पार्टिसिपेशन है। अप टू नेक्स्ट 2 साल में निफ्टी अपना जो एंट्री पॉइंट है 25,090, वहां से 2 साल में इफ निफ्टी ग्रोज अप टू 35%, यू विल गेट 175% पार्टिसिपेशन। निफ्टी 1% बढ़ेगा, आपको 1.75% रिटर्न मिलेगा, एंड द मैक्सिमम इज 35% इन 2 इयर्स। निफ्टी अगर सही में 35% बढ़ता है 2 साल में अप टू 35%, जितना भी होगा उसका 1.75 टाइम्स। तो आपका निफ्टी सही में 35% बढ़ा, यू आर मेकिंग 61.25% एब्सोल्यूट रिटर्न, विच इज अ CAGR ऑफ 26.45%, राइट। सो थिंक अबाउट इट दैट जैसे काफी एक साल से मार्केट नीचे है, राइट। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम कि अर्निंग्स 10-12% बढ़ा है, बट निफ्टी हैजंट ग्रोन। 26,800 वाला, 26,300 वाला निफ्टी राइट नाउ इज एट से 24,500 के नीचे में, राइट। सो ये प्रोडक्ट जब हमने लॉन्च किया तब 1 लाख का फेस वैल्यू था, उसके बाद में ऑन एवरी डे बेसिस, ऑन अ मार्क टू मार्केट बेसिस,
आप हमारे ऑफरिंग प्राइस के बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दैट मीन्स अगर ये स्टॉक सपोज अभी निफ्टी नीचे है तो ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में अवेलेबल होगा। मतलब जो बंदा आज 1 लाख रुपए की चीज समझो 99,000 में खरीद रहा है, उसका रिटर्न तो एक्चुअली 61 से भी ज्यादा आएगा, राइट? बिकॉज ही इज बाइंग एट अ चीपर। एंड सही में स्टॉक अगर 35% बढ़ गया है तो यू विल मेक 61% CAGR, 61% एब्सोल्यूट रिटर्न, 26% CAGR रिटर्न, राइट? सिमिलरली हमने अभी एक्सिस बैंक के ऊपर नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट किया था। वी एंटर्ड एट 1073। अगेन ये 18 मंथ्स का प्रोडक्ट है एंड वी बिलीव दैट एक्सिस बैंक हैज बॉटम्ड आउट। यहाँ पे काफी सारी जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इन द स्टॉक एंड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स टाइम वी थिंक दैट यहाँ से स्टॉक काफी बाउंस कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू कैप्चर दैट up to 30% growth, you get 160% participation. So अगर स्टॉक सही में 30% बढ़ता है, you make 48%, which is a CAGR of about 29%. And on the downside, you get 1:1x, right? So हम लोग कैसे सोचते हैं? I think now that you have understood all these products, similarly हम लोग ये Reliance के ऊपर एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। We are launching this on 12th, which is the next Wednesday. हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। So the product is downside में 1:1, upside में up to 25% growth, you get 1.6x the participation. So if your investor also thinks, if you as also financial advisor think कि अभी Reliance में काफी सारी जो भी अभी 1550 तक गया था, वापस आके स्टॉक 1300 के 1400 के बिलो है, राइट? सो सब इफ यू ऑल्सो शेयर द सेम थॉट प्रोसेस की एटलीस्ट यहाँ से नेक्स्ट 18 मंथ्स में मुझे रिलायंस नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है बाउंस होगा, there are a lot of value unlocking that will happen, green hydrogen etc. और जो टेलीकॉम बिजनेस में मार्जिन बढ़ रहा है, आरपू बढ़ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब जो चीजें हैं उसकी वजह से द स्टॉक विल बाउंस एंड it can go up to 1750 rupees in next 18 months. Here is an excellent opportunity to get 1.6x the participation on the upside. Of course on the downside there is 1:1 negative, right? So I'll just say one thing here and then we can open it up for question and answer. See, हम कैसे सोचते हैं? How does ABANS thinks in terms of launching product, right? Because as an asset manager, we can launch product, and as a financial doctor, right, as a distributor, you can actually add value by prescribing this product to your investors, right? So when we all are sailing in the same boat, हमें हमारा collective objective है to make good returns for the investors, right? And that's where we think that when a particular stock और निफ्टी फॉर एग्जांपल हैज फॉलन अ लॉट, तो हम वहां पे ऐसा सोचते हैं कि जब कोई स्टॉक ऑलरेडी नीचे गिर गया है तो फॉर अ स्लाइटली एग्रेसिव इन्वेस्टर ही शुड फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी फ्रॉम दैट rather than thinking about principal protection, right? And then of course when the markets are overshooted, you should think about principal protection as the most important motto, because आपको वो safeguard करना है, आपको उसको एक stop loss level बनाना है। वहां से you don't want your portfolio to go down, you want the portfolio to perform better or at least hold the value, if not deplete in the value. So from time to time we keep coming out with new products depending upon how the market also behaves, right? अभी जैसे market थोड़ा correction mode में है तो you would see that हमने अभी, and in fact हमने we have done this kind of product earlier also. अभी जैसे Reliance के ऊपर we did a product in the month of March 2025 when the stock was at some 1200 rupees level. So we entered at 1227 to be precise. और वो प्रोडक्ट था मार्च 2025 से 2 साल का प्रोडक्ट था। 2 साल में, सॉरी 18 मंथ्स का प्रोडक्ट था। 18 मंथ्स में अभी 3-4 महीने कंप्लीट हुए हैं, राइट? द स्टॉक इज ऑलरेडी एट अराउंड 1400 के आसपास। what we need is only 1550 rupees. If it was to happen, you got some 170% participation. ऐसा हमने GSEC के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाया था that if the 10-year GSEC goes down, that means if the interest rate goes down, your bond price will go up, right? And we did a product जहां पे हमने 265% participation दिया on the capital gain, right? So we did this product in January and March 2024, और अभी April month में when the 10-year GSEC price was above 105, वो product अपने आप auto call हो गया, and investor made about 17% CAGR return in that 10-year GSEC product, right? We've like that we have done so many products in the stock link structure as well, right? What I'm trying to tell you here is that
वी विल कीप कमिंग आउट विद मीनिंगफुल प्रोडक्ट जो हमें अच्छा लगता है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट, हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है कि जिन्होंने इंडेक्स से थोड़ा कम रिटर्न भी दिया है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव ऑलवेज गिवन मच बेटर रिटर्न्स, बट आई वुड से 70-80% ऑफ द टाइम्स, एंड हमारे जितने भी प्रोडक्ट अभी तक मेच्योर हुए हैं, वी हैव ऑल द डेटा। यू शुड आस्क माय कलीग्स एंड यू शुड आस्क निवेश टीम टू शेयर विथ यू दैट जितना भी प्रोडक्ट्स मेच्योर हुआ है, व्हाट हैज बीन आवर परफॉर्मेंस इन दैट, आप हमें उस बेस पे इवेल्युएट करिए। And I'm sure you will find that there are many more meaningful products that we have done whenever the markets have corrected, right? We believe firmly that when the market is fearful, we should be greedy, and when the market is greedy, we should be fearful, right? On that basis, we come out with various products that we do, right? I'll just cover one last point and then we can cover up the Q&A. See, in everything that I have told you, मैंने आपको सब प्रोडक्ट समझाए हैं। फ्रॉम अ रिस्क फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस अंडरस्टैंड दैट आप ये जब एमएलडी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो व्हाट आर द रिस्क दैट यू आर टेकिंग, राइट? एक तो है आपका लिक्विडिटी रिस्क, और बेसिकली आपका मार्केट रिस्क, कि आपने निफ्टी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया एंड लेट्स से द निफ्टी हैज एक्चुअली नॉट परफॉर्म्ड। वो तो सब प्रोडक्ट के लिए है। आप म्यूचुअल फंड में करते, स्टॉक्स में करते, तो भी वहां पे नहीं था, वहां पे भी आपको रिटर्न नहीं मिलता था। बट अदर देन दैट, यू आर टेकिंग अ क्रेडिट रिस्क ऑन ए बैंक्स, राइट? वो आपको समझना जरूरी है दैट आपको ए बैंक्स को पैसा क्यों देना चाहिए, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डिबेंचर इज सब्जेक्ट टू द क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशूअर। तो शुड यू ट्रस्ट ए बैंक्स, व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन टू यू कि हम, आप जब हमें 100 रुपए देते हो तो हम उस पैसों का क्या करते हैं, राइट? और उसके लिए मैंने आपको ये भी फाइनेंशियल समझाया है कि आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हेन आई टॉक अबाउट आवर ग्रुप कंपनी, पेरेंट कंपनी, व्हेन आई हैव अ नेटवर्थ ऑफ 1165 करोड़, मेरा जो नेट बोरोइंग्स है, एंड आई वुड एनकरेज यू टू गो थ्रू अवर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, दैट मैं नेट बोरोइंग्स की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ग्रॉस बोरोइंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी ये जो एनबीएफसी है, उसमें ऑलमोस्ट 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा जीसेक में है, 700-800 करोड़ का, और उसके सामने हमने रेपो विंडो में बोरो किया है। बट अगर मैं बैलेंस शीट से वो दोनों साइड से, मैं लाइबिलिटी और एसेट साइड से मैं वो 700 करोड़ निकाल देता हूँ, तो जो मेरा नेट बोरोइंग बचता है एट अ consolidated level for my parent company is not more than 100 crore, which is a debt equity ratio of less than 10%, right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जब एबैंस के एमएलडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप एबैंस का क्रेडिट रिस्क ले रहे हो, पर उसके सामने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, इज दैट व्हाट आर वी डूइंग विद दिस मनी? आप हमें जो पैसा दे रहे हो, उसका हम क्या कर रहे हैं? वो हाउ हैव वी जनरेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल? उसके लिए आप हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टडी करिए, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड and also explain to your investors, in terms of the risk factors that are involved with our products. थैंक यू सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। Thank you, थैंक Kirti. यू Thank सर। you, थैंक यू thank सर। you. Bye. Bye.